Good morning. Good morning. This is, I think, a surprise. This live wasn't planned, but it's just happening on popular demand because we did a live on Thursday, and unfortunately, due to some technical glitch, I was not able to upload it on my page. And since then, we've been getting so many. This is co hosted, so that's why I'm using we. Um, so many people have sent us requests that they wanted to rewatch, and some people didn't get the chance to see it on Thursday. So here we are again. I'm just waiting for my co-host to join the live, and then we will start with our discussion on karma. It's anyways a very wide topic. There is so much that has been written on it, so much that has been and Gauri will be joining us soon. There she is. Hello, everyone. Very good morning to you all. I Happy was just Saturday. I was just telling everyone that we had a technical glitch, so we couldn't upload this, and we Yeah, are back as a surprise and on popular demand because so many people requested yes, for us to do this again. People yeah, wanted to watch it, some wanted to rewatch it. So yes, here we are back again, and over to you, Gauri. Let's start. yes. First of all, welcome back, everyone. This is our second episode of Enlightenment Within. Today, mainly, we are going to talk about karma, as Pooja said. So, I'm going to start with a shlok first because it's karma. Yes. So, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् माते संगो स्वकर्मणि. And we will dive more deeper into the meaning of this shlok that I said. Because as we all know, karma, in practical sense, it is what goes around comes around. So, how does it work? How can we get out of the circle of karma? Because karma is the biggest, what you call, cage that a human being has to go through. Because if you don't finish one karma, you have to take another life and another life and another life. So, how can we actually finish this cage, this trap that we actually trapped in? We all want freedom, but how can we be actually free? That is the reason why this is such a beautiful and amazing topic. So, starting with the first question, Pooja, that I know most of us would have is, what exactly is karma? How should we understand what karma is? So there are many definitions, many understandings to this one word, but to simply put it, you can consider this as an invisible contract that we have Yeah. with time, with other souls, with other situations. So it's a contract that we have made over lifetimes, Hmm. and every time we take birth, some part of this contract has to be fulfilled, or Yes. some part of this contract will be manifested. So karma is essentially the outcome of your deeds. Okay, जो जो हमारी डीड जो हम करते हैं, Hmm. उसका ये आउटकम है एक. So very simply put, is like this only. It's an outcome of your deed. It's an invisible contract that whether we believe in this or not, whether we accept it or it is there for each and every person, and irrespective of who we are, where we are, what we are doing, all of that doesn't matter. This contract remains with each and every person. So yeah, simply put, I think that is what we can all understand as karma. Yes, because it's very beautifully said by you, because it's like जो हम पेरते हैं, जो बीज हम पेरते हैं जमीन पे, धरती माँ में, वो बीज का कभी ना कभी फ्रूट तो हमें मिलना है. Yeah, तो अगर yeah, आपके कर्म एक बहुत स्वीट फ्रूट को जन्म देते हैं, तो you get the results of a very sweet fruit. If it's a sour fruit, then it's a sour fruit. If it's a bitter yes, fruit, bitter fruit. So be prepared. You don't have to be scared. You don't have to be worried. But yes, that is very beautiful. yes. Now, as we understand what karma is and how it entangles us, what are the different types of karma?
Yeah, so that's a very good question. So, and it's really important to understand this because at the end of the day, all of us have karma, which is why we here. If Yes. we didn't have, then there was no reason to take birth again. So, to understand and to live in awareness is the first step to be able to transform your karma. So, it cannot uh, become less or more. It can just be transformed energy Hmm. because it's only energy. So there are basically three Hmm. types of karma, but there is a fourth one also, which is not very too much spoken about, but I will kind of just lightly brush upon it. So the first is called the Sanchit, Hmm. then there is Prarabdh, then there is Kriyaman karma, and the last is Agami karma. Now, Hmm. Sanchit karma is the sum total of all your lifetime. So, from the first till today, it Hmm. is the sum total of every birth that we have taken. So, Hmm. Hmm. imagine it as a big ocean of Hmm. your karmic deeds. Okay, so Hmm. everything, Hmm. कुछ भी Hmm. कर्म करा हमने किसी भी जन्म में करा होगा, वो आप मान के चलिए एक हमारा सबके पास एक अपना प्राइवेट ओशन है हमारे बिल्कुल. कर्मों का. तो Hmm. संचित इज दैट प्राइवेट ओशन. Hmm. Hmm. नाउ एवरी टाइम वी टेक बर्थ, जब हम जन्म लेते हैं तो अब हम सारा वो पूरा ओशन तो लेके आ नहीं सकते, तो जीना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा, हम जी ही नहीं पाएंगे. तो बिल्कुल. उस ओशन में से हम थोड़ा सा, कोई एक Hmm. बकेट Hmm. निकालते हैं, कोई एक मग निकालते हैं, कोई एक ग्लास निकालते हैं, डिपेंडिंग ऑन सोल की डिजायर क्या है, इस Hmm. लाइफ में क्या फुलफिल करना चाहती है जो जीवात्मा है. तो वो उस हिसाब से वो जो कर्म लेके आते हैं Hmm. उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध. Hmm. अब ये जो प्रारब्ध होता है, ये इसमें इसके पार्ट ए और पार्ट बी होता है. Hmm. पार्ट ए होता है फिक्स्ड प्रारब्ध, Hmm. Yes. जो कभी भी नहीं बदल सकता. बिल्कुल. हमारे को सिर्फ प्रभु की कृपा से अगर बदले सो बदले. आप में बहुत भक्ति भाव है या आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है और आप बहुत ही मन से ध्यान लगाते हैं और प्रभु की कृपा है, तो सिर्फ Hmm. वो ही कर सकते हैं. उसके अलावा कोई इंसान के बस में नहीं है इस प्रारब्ध को चेंज करना. वो बिल्कुल. हमारा फिक्स्ड कर्मा होता है. जो बिल्कुल. एक होता है जो थोड़ा सा मूवेबल होता है, मूवेबल जो होता है. यस. इतना फिक्स नहीं होता. और Hmm. वो मूवेबल क्यों होता है? क्योंकि फिर जो हमारा क्रियामान कर्मा आता है वो उसकी मदद करता है कुछ एनर्जीज को शिफ्ट करने के लिए. Hmm. तो Hmm. क्रियामान कर्मा क्या होता है? क्रियामान कर्मा होता है जो हम रोज क्रिया करते हैं. क्रिया Hmm. मीन्स एक्शन. एवरी Yes. एक्शन दैट वी टेक on a daily basis, Hmm. that constitutes our क्रियमान कर्मा. अब इसमें Yes. एक्शन में हमें सिर्फ ये नहीं समझना कि जो हम सिर्फ करते हैं कोई Hmm. एक्शन, जो Hmm. हम सोचते हैं, जो बिल्कुल. हमारे इमोशंस हैं, जो हम बोलते हैं एंड जो हम करते हैं, ये सब हमारे कर्म बनाते हैं. हम में बिल्कुल. से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके एक्शंस बहुत प्योर होते हैं लेकिन उनकी सोच इतनी प्योर नहीं होती. वो बिल्कुल. कॉन्स्टेंटली लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जज करते हैं, गॉसिप Hmm. करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं. ये सब हमारे नेगेटिव कर्म बनाता है, ये सब कुछ. तो इन बिल्कुल. सब टोटल का जो होता है वो क्रियमान कर्मा होता है. तो 70% ऑफ योर कर्मा इज ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड, क्योंकि हम पुराने अपने जन्मों से अपना क्लियर करने आ रहे हैं वो. वो, और हर Hmm. एक सोल की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, वो बिल्कुल. उनकी एक पर्सनालिटी होती है. अब Hmm. वो एंगर की है या वो जेलसी की है या वो काइंडनेस की है, वो तो लेके आते ही हैं साथ. एंड उस पर्सनालिटी को चेंज करना इज योर Hmm. क्रियमान कर्मा. हमें Yes. हमारी कोशिश पूरी यही रहनी चाहिए कि जो हमारी पर्सनालिटी है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं. Hmm. इसके Hmm. अलावा एक जो फोर्थ होता है उसको आगामी कर्म बोलते हैं, आगामी Hmm. कर्मा बोलते हैं, नॉट कर्म, सॉरी. Hmm. वो ये होता है कि हमारी जो भी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, Hmm. जिनका हमें कॉन्शियसली पता भी नहीं, बट वो बहुत डीप सीटेड डिजायर्स हैं, वो इस जन्म की हो सकती हैं, वो कहीं से फॉरवर्ड हो रही हैं कि मतलब कितने जन्म निकल गए और ये डिजायर अभी तक फुलफिल नहीं है. वो एक Hmm. बहुत प्रोमिनेंट डिजायर या डिजायर्स हैं जो कहीं जाके किसी फ्यूचर लाइफ में फुलफिल होंगी. उसको हम आगामी कर्मा बोलते हैं. क्योंकि Hmm. जब तक हमारे अंदर, जब तक जीवात्मा में एक भी डिजायर है, Hmm. तब तक हमें जन्म लेना पड़ेगा. बिल्कुल. तब तक एब्सोल्युटली. पूरी छोटा सा छोटा भी क्यों ना हो वो. छोटा से छोटा भी इच्छा, कोई आप इच्छा लेके अपना शरीर त्यागते हैं तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप वापस जन्म लेंगे. वो तो एक 100%. सिद्धांत है, उसको कोई नहीं बदल सकता. सो द गुड थिंग इज टू फुलफिल योर डिजायर्स. अगर Hmm. डिजायर्स Hmm. कोई रीजन से हमको भगवान ने या हमारे
खुद ने हमने हमारे जब हम अपना सोल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम अपना पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो उसमें हमें अपनी डिजायर्स भी लिखी होती है, तो उन डिजायर्स को फुलफिल करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि बिल्कुल। उसको फुलफिल करने में भी हमारे को बहुत लेसन समझ आएंगे, बहुत हम्म। चीजें समझ आएंगी। हम्म। तो जब भी हम ये करते हैं, इसी से हम ये फिर अपनी एक इच्छाओं की पूरी अच्छी तरह से सेटिस्फाई होके, जब सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तब फिर सोल के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो वापस इस लाइफ डेथ साइकिल से हट जाए, और बिल्कुल। जहां से आए हैं हम वहां से ही वापस चले जाए। बिकॉज at the end of the day, it's so important to realize that we are all spiritual beings having a human यस, experience. It's not the other एब्सोल्युटली, way. We are not एब्सोल्युटली। human beings having a spiritual experience. It's the other way around. We are all spiritual beings. You, me, X, Y, Z, hum sab. We are all spiritual beings having a human experience. So to be able to transform your karma is the purpose of life. To यस। make yourself a better human being is the यस। purpose of life. So yeah, that is in a nutshell the four different types of karma that all of us have to deal with. All of us. There is no exception to this rule. Yes, and the beautiful thing about karma is because as we decided to go ahead with this topic, we both researched, we both Yes. learned a lot of things, and we first of all, I would first of all from both our sides, I would like to thank Shri Krishna ji, because अगर उन्होंने Yes. अर्जुन को वो गीता नहीं सुनाई होती तो हम ये इतना ब्यूटीफुल टॉपिक आज Yes. इस Very पे true. बात नहीं कर पा रहे होते, और हमें खुद नहीं समझ आती कुछ चीजें जो हमसे सीखनी बाकी हैं। जब मैं वो सीख रही जब हम मैं वो रिसर्च कर रही थी, या मुझसे वो रिसर्च करवाई जा रही थी परमात्मा से, हम कौन होते हैं कि मुझसे कुछ हो रहा है। Mm. अगर जब वो हो रहा था तब देयर वाज आल्सो वन कर्म जो आपकी ही कैटेगरी में फॉल करता है, जो 4 कैटेगरीज आपने अभी बोली, व्हिच इज निष्काम कर्म योग। Nishkam. निष्काम कर्म योग इज नॉट अबाउट नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज अबाउट उस टाइम पे जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, वो करना है। Mm. एंड बाय धर्म, फॉर एग्जाम्पल, जब जब अर्जुन उस युद्ध भूमि पे खड़े थे, उनका वो धर्म था कि वो लड़े, उनका वो धर्म था कि वो शस्त्र ना डाले, क्योंकि अगर उन्होंने शस्त्र डाल दिए होते तो जो धर्म को बदलना था, जो कृष्ण को वो पहिया हिलाना था लाइफ का, वो शायद हिलता नहीं। और वो उन्होंने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मुझे शस्त्र उठाने पड़ेंगे। ऐसा Mm. नहीं है कि अगर तुम नहीं करोगे तो कर्म आगे नहीं बढ़ेंगे, कर्म तो Mm. जरूर आगे बढ़ेंगे। और कर्म का सिद्धांत इतना होता है कि उसमें किसी की पार्शियलिटी नहीं होती है, कि Mm. भगवान ये नहीं कहते कि अच्छा तुम तो मेरे फेवरेट हो इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूँ, 10% का, 20% का, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसीलिए दैट इज द बेस्ट थिंग दैट द सोल कैन एक्सपीरियंस, कि ठीक है तुमने ये किया, तुम्हारा ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एंड ऑल्सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट ऑफ हाउ यू सेड कि हमारी सारी जो इच्छाएं हैं वो हमें खत्म करनी है। आई ऑल्सो फील through whatever whatever was being put into my head through the research is that मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, is what I have understood with the life and with understanding। बट अगर हम सिर्फ जैसे आपने कहा कि कुछ कर्म भगवान का नाम जप लेके निकलते हैं, कुछ कर्म नहीं निकलते भगवान का नाम जप लेके, बट इफ यू जस्ट पुट हिम कि मैं कुछ भी कर रहा हूं ना, आई एम डूइंग दिस क्योंकि ये मेरा कर्म है, और मैं कृष्ण को अर्पित करता हूँ या राम को अर्पित करता हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आर्मी में हूँ, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, वो भी मैं कृष्ण को अर्पित करता हूँ। तो हमारी बुद्धि जो है वो उस कर्म को लगेगी जो कर्म हमें करके फिनिश करना Mm. है। क्योंकि अगर हम अपने बुद्धि से चले जाएंगे तो हम चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, कर्म के ऊपर कर्म बांधते ही रहेंगे, बांधते ही रहेंगे। एंड हम अगर वो बांधते रहे तो हमारा कंधे बहुत हैवी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कर्म का सिद्धांत है वो। तो आपने कहा वो बहुत ब्यूटीफुली बताया कि 4 टाइप के कर्म होते हैं। अब इसके बाद जो मुझे पूछना है कि ये जब अम, मैं ये पढ़ रही थी उस टाइम पे भी बताया गया था कि जो साधु संत भी होते हैं वो भी कर्म करते हैं, जो एक गृहस्थ जीवन गृहस्थ आश्रम में भी होते हैं वो भी कर्म करते हैं। तो सांस लेना भी अगर कर्म है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि अच्छा मुझे, मैं अगर ये कर्म कर रहा हूँ तो मुझे ये अच्छे से करना है। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं अच्छा मैं चैरिटी कर दूंगा ना तो मेरे बुरे कर्म कट जाएंगे, अगर मैं गंगा में नहा लूंगा तो मेरे बुरे कर्म कट जाएंगे। तो उसमें ऐसा नहीं हम होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल, होता। आप बिल्कुल। किसी का जाके खून करें और जाके बोलो इस बार मैं गंगा में नहा लूं तो मेरे सारे कर्म, वो गंगा जी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो तो ये तो सी द कर्म का एक बेसिक सिद्धांत है
intention. Yes. The basic principle that the whole theory of karma is based on is what is your intention. Yes. आप किस intention से कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक सोल्जर अपने देश को बचाने के लिए किसी की हत्या करता है, और एक टेररिस्ट अपने कोई भी सेल्फिश मोटिव के लिए किसी की हत्या करता है। तो अब यहाँ पे हत्या तो हुई, वो एक क्रिया तो बनी कि दोनों ने किसी को मारा, दोनों ने जान ली, लेकिन एक सोल्जर ने अपनी कंट्री के, अपने ऑनर के लिए, अपनी कंट्री को और वहां के लोगों को डिफेंड करने के लिए करा, और एक ने कोई सेल्फिश मोटिव से करा। तो दोनों का चाहे कर्म सेम है, लेकिन उसका इंटेंशन और उसका आउटकम टोटली डिफरेंट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल. So it is very important to understand this, that with what intention are you doing something. Now, like you spoke about charity, Gauri, a lot of people do charity from the pureness, from the kindness Yes, of their absolutely. heart. They Absolutely. do it because that's who they are. There are other people who will do charity because it's supposed to be posted on Instagram and they're expecting Yes. millions of likes and all of that, all that drama. In both cases, आउटकम चैरिटी का, आपने किसी की मदद करी, वो तो हो गया। इन्होंने भी, जिनका इंटेंशन प्योर है उन्होंने भी करा, जिनका इंटेंशन शायद इतना प्योर नहीं है उन्होंने भी करा। तो आउटकम तो दोनों का होगा, बट दोनों का रिजल्ट एकदम फर्क होगा कि आपने Yes. किस इंटेंशन से किसी की मदद करी। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड दैट, sometimes I feel is, especially for charity, अगर आप करके विदाउट प्राइड, विदाउट ईगो, Yes. अगर आपने The किसी most की कुछ important. मदद करी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं एक एनजीओ है उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ, एक कंपनी है, मैं पता नहीं पिछले 20-25 साल से उसको सपोर्ट करती हूँ, मुझे उनका काम बहुत ऑनेस्ट लगता है। तो मैं एज एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू दिस सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आई टॉक अबाउट इट कि मैंने इस इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया और उन्होंने उससे बहुत अच्छा काम किया। Not the idea is not to glorify what I do. Yes. The idea is to inspire someone else that they can do the same. Absolutely. So there is a very clear difference कि आप अगर अपनी चैरिटी के बारे में बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपकी इंटेंशन क्या है कि लोग आपकी वाह वाह करें, कि आप एक जरिया हो, एक मीडियम हो। शायद आपको भगवान ने या आपकी सिचुएशन ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं। तो फिर अगर आप ये बोले कि मैं ये करती हूँ, हर महीने करती हूँ, हर हफ्ते करती हूँ, जो भी आप करते हैं, and your intention is that somebody can get inspired and do the same, Yeah. then you're creating a different karma. So Absolutely. in anything that you do, your intention is of prime importance, prime importance. Absolutely. Absolutely. Very beautifully said. फिर अगर ऐसा है, if intentions matter और सब जो हम करते हैं उसका ही हमें रिजल्ट मिलता है, तो हमने काफी बार सुना होगा ये चीज कि मैं तो सबसे बहुत अच्छा बिहेव करता हूँ, मैंने इस जन्म में, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा भी किया होगा। फिर वो लोग क्यों सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, जो लोग बोलते हैं कि मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, बुरा होता है? अनएक्सपेक्टेड। Yes, या yes. I get this question a lot, Gauri, through my counseling sessions. Also, a lot of people ask me this. यस So it's a very simple explanation to this, कि जो आप अभी देख रहे हैं, आपका, हमारा ना, हमारे ब्लाइंडर्स लगे हैं, हम सिर्फ ये देख सकते हैं जो हमारे सामने है। इट्स वेरी नेचुरल ऑल्सो। आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी पिछले जन्म का कर्म अब मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले बोला कि जब हम कोई एक बीज डालते हैं बिल्कुल। सॉइल में, तो ऐसा तो नहीं होता कि 2 घंटे बाद उसमें पूरा बड़ा पेड़ बन जाए। कई के होते हैं पेड़ जिनको 6, 8, 10 महीने, 12 महीने बिल्कुल लग सकते हैं, कईयों को 2-3 साल भी लग सकते हैं। तो बिल्कुल कौन सा कर्म आपका कब राइप होके मैनिफेस्ट होगा, वो हम में से कोई नहीं जानता, वो सिर्फ ऊपर Absolutely. वाला जानता है। कि आपका, सी द होल कार्मिक प्लान इज सो कॉम्प्लेक्स एंड इतना इंटरकनेक्शन है सबके बिल्कुल साथ, क्योंकि बिल्कुल अलग बैठ के तो हम कोई कर्म कर ही नहीं सकते। हम कर्म करते हैं with respect to somebody else or something else. किसी के यस साथ आप इंटरैक्ट करोगे तभी कर्म बनेगा, एंड हम सब ने इंटरैक्शन से ही कर्म बनाए हैं। तो जब तक वो ग्राउंड फर्टाइल नहीं होगा, तब तक आपका कर्म मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। देयर इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल फ्रॉम द महाभारत, इन विच जब पूरा वॉर खत्म हो जाता है, तो धृतराज श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप चाहते तो
ये युद्ध शायद ना भी होता, हम्म या अगर आप हम्म चाहते तो मेरे 100 में से 1 या 2 पुत्र तो जीवित रहते, पर ऐसा हम्म मैंने क्या करा कि आपने मेरे 100 के 100 पुत्रों की जान ले ली। मुझे हम्म राज दरबार तो दिया पर मेरी हम्म आंखें नहीं दी। तो इतना क्या मुझसे बुरा हो गया कि मैंने इस जन्म में, ऑल्दो आई एम अ किंग, आई हैव हम्म फेस्ड सो मेनी डिफिकल्टीज। हम्म सो श्री कृष्ण टेक्स हिम बैक टू 100 thousands ऑफ लाइफ्स बिफोर, हम्म एंड उनको दिखाते हैं उस हम्म जन्म में वो एक हंटर था, वो चिड़ी मार बोलते हम्म हैं उसमें, हम्म वो एक हंटर था। तो उसने अपना जाल फेंका, एक चिड़िया थी कहीं पे, दाना किसी ने डाला हुआ तो मजे से बड़े प्रेम से दाना खा रही थी। अब इसको चढ़ी मस्ती, इस हम्म चिड़ी मार को, इसने हम्म उसके ऊपर डाला जाल और वो चिड़िया सारी उसके अंदर फंस गई। नाउ हम्म हिज इंटेंशन वाज टू ट्रबल, हिज या इंटेंशन वाज नॉट कि मैं इनको लेके जाऊंगा, ये मेरा व्यवसाय है, इनको मैं लेके जाऊंगा कहीं पे बेचूंगा, लोग खरीदेंगे अपने घर में। नो, हिज हम्म इंटेंशन वाज हम्म टू कॉज ट्रबल टू दोज बर्ड्स। हम्म एंड इट जस्ट सो हैपेंड उस जाल में 100 चिड़िया फंसी। और फिर बात वहां खत्म नहीं हुई, फिर उनको और परेशान करने के लिए और तंग करने के लिए इसने माचिस ली और उसमें आग लगा दी। ओ हम्म तो वो सारे कुछ मर गई, कुछ हम्म ब्लाइंड हो गई। हम्म नाउ अगला जन्म जो इसका हुआ, हम्म तब इसके पास इतना कुछ नहीं था कि इससे हम हम्म जो भी हमारे कार्मिक रूल्स हैं उनके मुताबिक हम उससे कुछ ले सके। तो भगवान ने बोला तुम्हारे अगले इतने जन्म में ऐसा तुम्हारे पास कुछ नहीं था कि मैं तुमसे छीन सकूं इसको बैलेंस करने के लिए। तो धीरे हम्म धीरे हमारी बुद्धि बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हम्म हमने कोई अगर गलत काम करे तो हमेशा एक गलत इंसान ही रहेगा। हमें आगे बढ़ना इज अ बिल्कुल पॉसिबिलिटी। टू बिल्कुल हंड्रेड चेंज योर परसेंट सेल्फ इज 100% अ पॉसिबिलिटी। हंड्रेड परसेंट डाकू यस भी संत बन जाते हैं। It's a 100% possibility. So over different incarnations, he accumulated that good karma to be born king and to have 100 sons. Now then now the ground is fertile या for that या karma. So यस it is so important to understand this कि अगर आपने कुछ बुरा करा है तो वो कहीं गायब नहीं हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल वो रजिस्टर होता है। हमें हंड्रेड हम परसेंट किसी से भी छुपा लें, हम्म अपने आप से भी छुपा लें, बट हम एक ये जो डिवाइन एनर्जी है, जो डिवाइन पावर है, हम इसको कोई भी राम, शिव, हनुमान, देवी, कृष्ण, कुछ भी नाम दे दे, ये जो डिवाइन पावर है इनसे कुछ नहीं छुपता, बिल्कुल कुछ ये भी नहीं। बिल्कुल बिकॉज दिस इज सो ब्यूटिफुली सेड जैसे कि म- म- अम, जैसे कि मेरे भी एक्सपीरियंसेस में बहुत लोग ये बोलते हैं आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समवन वेरी क्लोज टू मी हु हु आई वाज टॉकिंग टू एंड दे वर एक्सप्लेनिंग कि कैसे नथिंग इन देयर लाइफ was कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ किया होगा ना इस वजह से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ and a lot of people say that as you said a lot of my own clients a lot of your own clients we experience this a lot the अब इसमें भी when I was researching again I came across Osho and उन्होंने बहुत बहुत ही सुंदर चीजें उसमें बोली कि जैसे आपने बोला ना कि एक पेड़ को उगने में इमीडिएटली उसका असर नहीं दिखता विद इन द नेक्स्ट डे कभी भी कोई पेड़ नहीं उगता बट उन्होंने एक चीज बताई कि जैसे अगर चाय गिर जाती है कारपेट पे एक रात सोने से पहले आपसे चाय गिर गई आपने वो पोछी नहीं अब ओवरनाइट कारपेट ने सोक एब्सॉर्ब कर लिया उसको कॉफी को पर उसका जो मार्क है ना कॉफी का वो कारपेट पे ही रहेगा इसका मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की तुमने अगर कोई कर्म किया है इफ इट बी अ गुड कर्मा और बैड कर्मा और वेरी बैड कर्मा और एक्सीलेंट कर्मा वो कर्मा आपके सोल में रजिस्टर हो चुका है इवन इफ योर पेरेंट्स नो अबाउट इट योर पार्टनर नोज अबाउट इट या एनीवन इफ दे डोंट नो इट डजंट मैटर आपके अंदर वो है वो संस्कार आप में आ गया अगर आपने ओवरनाइट गुस्सा करके आप सो गए तो आप अगले दिन उठोगे आपको लगेगा हाँ यार मेरे अंदर से शायद गुस्सा निकल गया वो पूरी तरह से गुस्सा निकला नहीं है इट्स मे बी 80% गॉन 20% स्टिल देयर तो व्हाट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा टीचर्स अस कि वो हमें रिजल्ट देगा ही देगा वो हमें ओशो कहते हैं जब कर्म की लाठी पड़ती है ना तो आवाज नहीं आती पर सब करके लेती है तो अगर उसमें 20 साल लग जाए 30 साल लग जाए या मेरी एक ही साल में सब हो जाए अगर आपने कुछ भी किया होगा वो होगा और कर्म ये नहीं देखता कि तुमने अच्छा किया या बुरा इट हैज नो अच्छा बुरा इन इट क्योंकि कर्म तो कर्म होता है ना तुम कर्म करो और जो भी होगा भगवत गीता में ये मीनिंग प्रॉपरली दिया गया है सिर्फ कर्म करना तुम्हारे हाथ में है वो फल
कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, दैट इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, इज नॉट इन योर हैंड्स. Yeah, it is not. You're absolutely right. And होता क्या है, all of us think कि जैसे for example, अगर आपने मेरे साथ कुछ अच्छा करा, तो हम्म. मेरी टेंडेंसी यही होगी कि हम्म. अगली बार जब मैं आपके साथ अच्छा करूं वापस, ओके, हम्म. सपोज नहीं, वो इट नहीं डजंट वर्क होता लाइक दैट. या मैं या. नहीं कर पाती, हम्म. आपने जो अच्छा कर्म करा दैट इज रिकॉर्डेड, हम्म. आपको वापस कहीं ना कहीं से वो मिलेगा ही. बिल्कुल. So the source from where it comes is यस. never defined. नेवर It is डिफाइन. never defined. It can come from anywhere एंड इन and एनी फॉर्म, शेप और in फॉर्म, any इट कुड form. बी. Yeah. आपने अगर किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को लोगों का प्यार दिया होगा और उनके साथ खड़े होंगे, तो आपको हमेशा ये मिलेगा कि शायद आपके बहुत क्लोज लोग आपके साथ नहीं होंगे, मे बी कोई थर्ड पर्सन जो आपका Yeah. अभी अभी मिला है वो साथ में खड़ा हो जाएगा. पर ये कभी नहीं होगा कि आप अकेले होंगे, आपके साथ कोई ना कोई होगा, क्योंकि आप किसी के साथ उस टाइम खड़े थे ना, तो Hmm. होगा वो आपके साथ. और Absolutely. और ओशो ये चीज भी कहते हैं कि, आई एम कोटिंग ओशो सो मच बिकॉज वो मुझे इतनी अच्छी चीज लगी उनकी, कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे साथ कोई, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल XYZ ने ABC के साथ कोई चीटिंग किया, कोई फ्रॉड किया, कोई ऐसा किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था चीटिंग, बट हो गया चीटिंग फॉर एग्जांपल. अब अगर ABC उस दुख में 4 से 5 साल कंटिन्यूअस वही सोचता रहे कि नहीं यार, मुझे ना इसके साथ जो हुआ इसका डबल उसको होना चाहिए, मेरे साथ जो हुआ उसका डबल उसको दुख होना चाहिए, उसके साथ वो होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ. बट वॉट ही एक्चुअली ट्राइज टू एक्सप्लेन अस इज कि ये सब मत सोचो. अगर हमने, अब तुम्हारी हो गई ना, तुम्हारा जो कर्म था वो फिनिश हो गया उस बंदे के साथ. नाउ इफ यू अगेन थिंक कि इसको ये ऐसा मिलना चाहिए, यू अगेन ओपन दैट न्यू चैप्टर ऑफ कर्मा विथ हिम which was already closed. You don't need to open it again, and you don't need to dwell into the sadness or the sorrow that the XYZ person caused you. क्योंकि अगर उन्होंने दुख दिया, why are you giving them so much importance कि आप उनको अपने दिमाग में जगह दे रहे हो. मेरे गुरु Hmm. हमेशा एक चीज बोलते हैं कि अगर तुम्हें जितना रोना है ना, तुम रो लो. तुम्हें जितना रोना है, जब तुम्हारा घर का दरवाजा बंद हो ना, जितना रोना है रो लो, ठीक है. पर जब तुम घर से बाहर निकलो, तो तुम्हारे चेहरे पे ऐसे अ, एक बोल्ट वाली हंसी होनी चाहिए कि सबको ये लगना चाहिए कि यार, बंदा बहुत बढ़िया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि वो होता है ना, यू हैव टू शो, अंटिल यू शो योर गुड. जैसे आप हंसते हो, आपकी बॉडी को भी ये रियलाइज होता है कि ओ, एवरीथिंग इज वेल विथ मी, एवरीथिंग इज वेल विथ मी. तो जब तक आप अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा बताओगे, नहीं ठीक है बेटा तुम ठीक हो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तब तक कुछ नहीं Yes, हो सकता. very true. I'm reminded of this story that I had read, which really supports what you're saying. यस. And I'm going to share that. So there was, जब ये नाजी कैंप होते थे, जब हम्म. हिटलर ने इतना तबाही मचाई हुई थी. हम्म. So there हम्म. was this Jew couple in one of हम्म. his Nazi camps, and the war हम्म. was coming to an end at that. This is a true story. The हम्म. war हम्म. was coming to an end at that time. हम्म. एंड इस कपल को जो नाजी सोल्जर्स थे उसमें से एक मेजर था, वो हम्म. इनको बहुत टॉर्चर करा. दे वर हम्म. स्ट्रिप्ड नेकेड, दे यूज्ड टू बी बीटन अप, उनको खाना हम्म. नहीं मिलता था. मतलब हम्म. फॉर्चुनेटली जब नाजी कैंप खत्म हुए और ये दोनों बच गए, हस्बैंड एंड वाइफ, they came out of the camp and then they led a very miserable life. हम्म. उसके बाद they both died and then they take birth again. हम्म. Now they've taken birth again as a couple. हम्म. And बड़े बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी पायस, भगवान में बहुत बिलीव करते हैं. एंड वापस इनका जर्मनी में ही जन्म होता है. हम्म. एंड एक बच्चे की बहुत इच्छा है इनको. तो ये नॉर्मल मेडिकल, बिकॉज लॉजिकल माइंड है, दे वेरी हम्म. लॉजिकल हम्म. पीपल, दे डोंट बिलीव इन होलिस्टिक एंड ऑल ऑफ दैट. तो 10-15 साल शादी के हो जाते हैं, ट्राई करने के बावजूद बच्चा नहीं होता. एंड हम्म. फिर किसी हीलर के पास जाते हैं, कुछ करते हैं, तो कोई हीलिंग के थ्रू इनको एक बेबी पैदा होता है. हम्म. वो बेबी जो पैदा होता है आफ्टर सो मच तपस्या इज अ completely mentally not all Oh. right. The child is Oh. born with Down syndrome. Okay, mental faculty is taken away. हम्म. तो ये हम्म. बेचारे बड़े दुखी होते हैं. हम्म. एंड ये वापस उस हीलर के पास जाते हैं. वो कहते हैं कि हमने इतनी इस जन्म में कुछ नहीं बुरा करा, सबका भला करा, जो हमसे बन पड़ा हमने करा, तो ये हमारे को किस बात की पनिशमेंट मिली है. हम्म. So the हम्म. healer takes them back to that life when हम्म. they were हम्म. those
they were in that camp. Hmm. He said आप उस कैंप से तो आ गए वापस, लेकिन वो वाला जन्म आपने पूरा जन्म उस मेजर को कर्स करने में निकाला. That Hmm. in Hmm. left only went in cursing that. तो he said तो उसने हमारे साथ बुरा करा, तो उसको क्या हुआ, Hmm. उसको Hmm. क्यों नहीं सजा मिली. ही सिंह उसको ये सजा मिली है कि वो आपका बच्चा बन के आया है. And he also has Down syndrome, And he so has, he's also facing. because he used his mental faculty to harm someone, so Hmm. in this life that is taken away. So you see, karma will Yes. always balance it out. And the other thing to understand this is that the universe does not work on any language. Yeah. English, Hindi, Yeah. Japanese, German, French, it doesn't. The Yes. only thing it works on is energy. तो Yes. जहां पे आपकी फोकस होगा जिस Hmm. चीज पे, उसकी Hmm. एनर्जी एक्सपैंड होगी. तो Yes. अगर आप सिर्फ, जैसे आप बोल रहे थे कि अगर आप सिर्फ किसी ने आपको कुछ बोला या Hmm. किसी ने कुछ आपको दुख दिया, तो Hmm. आप थोड़े टाइम के लिए, बहुत स्वाभाविक है कि आपको बुरा फील होगा, बट आप उस पूल में ना रहे. क्योंकि Yes. आप जितना अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, उतना ही वो प्रॉब्लम बढ़ेगी. एंड व्हाई 100%. this is logic. This has Yes. been proven because the universe is understanding only your energy. So when Yes. you're angry, that energy is coming out, more anger will come back to your life. That's one part to understand. And the other part is that you are responsible for everything that is going on Yes. in your Yes. life, right Hmm. or wrong. Hmm. आपने किसी के साथ किसी जन्म में बुरा करा, वो अब आपका कर्म आपके सामने आ रहा है, तो किसी को ब्लेम क्या करना. आप And अंदर अपने आप को झाके देखो, अपने को चेंज करो, yeah. and then you will change your situation also. एंड देयर इज ऑल्सो वन ब्यूटिफुल थिंग कि अगर जैसे आपने बोला कि गुस्सा करेंगे तो गुस्सा आएगा. सो Yeah. एवरी इमोशन एंड एवरी thing that we say or think or visualize is captured in the universe forever. मतलब कल को Yeah. हम भी चले जाएंगे या our bodies will be burnt in the अग्नि, but वो हमने जो बोला है वो हमेशा के लिए रहेगा. तो rather than जैसे कि किसी को अगर किसी को हमने कर्स किया या किसी के बारे में गलत बोला, तो वो भी तो बातें यूनिवर्स में ज्यादा बढ़ेंगी. तो हम ऐसा क्यों ना करें कि अगर हमें कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो हम ना बोले, और अगर कुछ अच्छा बोले तो मेन पहले अपने आप के लिए अच्छा बोले. क्योंकि हम क्या करते हैं, खुद को बहुत नीचे कर देते हैं, बहुत ज्यादा. स्पेशली Yeah. व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन. जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, हम नो वन सेज कि रोना गलत बात है या अपने आप को टाइम देना गलत बात है. टेक योर टाइम, 6 months. इफ यू फील लाइक यू डोंट वांट टू मीट एनीवन, you want to be all by yourself to understand what you're going through, do that. But when you come back like a champion, come back Mm. like a winner, कि yes, Absolutely. I can do it. And the most important thing that I have to say कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, the first thing is karma hits back, that is for sure. और ऐसा नहीं है, जिन्होंने हमारे हमारे नाना नानी कहते थे कि ऐसा नहीं है कि जो ऐसा गलत करता है ना, उसको रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती. वो शायद हमें बाहर से बहुत खुश दिख रहा होगा या होगी या जो भी, कि एवरीथिंग इज ग्रेट, आई एम अर्निंग मनी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम दिस एंड दैट. पर उसको पता है, उसकी आत्मा को पता है, हिज सोल नोज, हर सोल नोज कि क्या मैंने किया है. जैसे वो दाग है ना, दैट संस्कार विल नेवर लीव दैट सोल अंटिल ही लर्न्स और शी लर्न्स from that hurt that he or she has Very, caused very to true. the other And person. also, Gauri, I feel that जितना हम कम समय बिताएं ये बिल्कुल. सोचने में कि और क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या हाँ. फील हो रहा है, हाँ, इतना ही हमारे absolutely. लिए, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीबडी अदर देन योर सेल्फ. Yes, Not your absolutely. children, not Yeah. your spouses, not your parents, nothing. Because जो आप साथ में वापस लेके जाओगे ना, सिर्फ दो ही चीजें. आपने Yes. अपने आप को अपने संस्कारों को बदलने के लिए क्या करा, Hmm. और किसी की मदद करने के लिए क्या किया. इसके And अलावा हम the कुछ third नहीं one, लेके जाते. sorry I'm saying this, but the third one is कि हमने एक दूसरे को उठाने के लिए, जैसे हमारे भी Same thing. सोल फैमिलीज होते हैं, Yeah. हमारे जैसे इधर फैमिलीज हैं, फिजिकल फैमिलीज, वी हैव अ सोल कम्युनिटी अप देयर. तो इफ यू आर हियर टू इम्पैक्ट समथिंग थ्रू
any learning that you have, if it's through healings, if it's through teachings, आप सिर्फ अपने यहाँ के फैमिली को नहीं बढ़ा रहे हैं, आप अपनी सोल फैमिली को भी बढ़ा रहे हैं. Yeah. I mean And that only. Anybody. What have you yes, done to help anyone? So whether that is yes, someone from your soul family, because that's very hard for common people to know who's from their yes. soul family. So And we'll whether they're discuss from about your it. soul family or Yeah, ex, right, whoever, yeah, what have you yes, done to impact another life? That is yes. important. And what I've learned from this is surrender and patience. Very Because true. Yeah. पेशेंस इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या है ना, पेशेंस से जब वो झाड़ बढ़ जाता है ना, तो जब हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है तो हमें समझ आता है, ओ अच्छा, इसीलिए तब हमें पेशेंस रखने की जरूरत थी. एंड द Mm. सेकेंड थिंग इज सरेंडर. वाई सरेंडरिंग डजंट मीन कि मुझे कुछ नहीं करना, आई हैव टू सिट No, आइडल. नो. not at all. कृष्ण ने भी अर्जुन Mm. अर्जुन को ये नहीं बोला था कि तुम युद्ध भूमि पे बस बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शस्त्र, Mm. ऐसे नहीं. उन्होंने समझाया एंड देन अर्जुन picked up his shastras. So we all have to do our job. We all have to do our kriyaman karma. We all have to do our sanchit karma. We have to finish it, क्योंकि वो you can take the horse to the water, but he has to drink the water. Yeah. वैसे ही when you do the karma, you will understand कि अच्छा, ये hurt मुझे इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे ये सीखना था, या ये मुझे इस चीज से बाहर निकालने के लिए मेरे साथ ये हुआ था. So everything has a reason behind it. And the reason is you. The faster Yes, you understand it, the better you come out of a problem. When you take responsibility for your life yes, changes, because then the blame game stops. Then yes, usne kara, isne kara, wo sab hum बिल्कुल. bhul jate hain. I always tell this to all my clients. You know, there's a focus light, put it on your face. Yes, This should not be the direction of the focus light. It should be this. Put yes, it on your face, internalize, go within and yes, see what is it inside me yes. that is attracting this person or this situation. Because if it is not inside of you, it Hmm. is never going to present itself on the outside. It just does not happen, because the universe only understands energy. So उसका Yes. element अगर आपके अंदर नहीं है तो Hmm. वो बाहर आ ही नहीं सकता. जैसी Yes. आपकी स्थिति वैसी वैसी आपकी आपकी परिस्थिति. परिस्थिति. हाँ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं. तो बिल्कुल. अपनी स्थिति बदले तो परिस्थिति ऑटोमेटिकली, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, वो ऑटोमेटिकली ही Automatically. बदल जाती है. Automatically. And karma is not as complicated as we think. As we Yeah. dive deeper into, जैसे पूजा जी ने बोला, as we dive deeper into ourselves to understand why are we here, who are we here for, we are here for ourselves. Then फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, what is our thing, what is the mission of our soul, क्योंकि हम सिर्फ बाहर की काम करने के लिए नहीं आए हैं, हम और भी Mm. चीजें करने के लिए आए हैं. And that's what we are going to discuss in the next Thursday's live also, that is coming up, कि हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों बनते हैं, हमारा जो लाइफ प्लान होता है that is mapped out even before we are born along with our spiritual team and our soul, ये क्यों होता है. That is the reason why karma today was such an important topic for discussion, because I know for Pooja ji it's a very dear topic to her to Yeah. discuss and talk about. And um, and it we really enjoyed the process of understanding and knowing कि at the end of the day karma is all about equality. क्योंकि हमको ये भी एंड में ध्यान रखना है कि जब हम किसी को दुख दे रहे हैं ना, हमारी वजह से भी किसी को दुख ना हो, क्योंकि दैट ऑल्सो, जो अर्थ की वाइब्रेशन है, हमें अर्थ की वाइब्रेशन को अगर ऊपर लेके जाना है, आर ओनली जॉब इज द मैन इन द मिरर, विच इज अस. वी आर द मैन इन द Yeah. मिरर. व्हेन वी लुक इनटू द मिरर, वी हैव टू से, ठीक है यार, आई एम गुड, आई कैन डू दिस, एंड आई एम नॉट जस्ट डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, बट आई एम ऑल्सो डूइंग इट फॉर द पीपल हु एक्चुअली नीड इट. जिसको भी Yeah. जो भी जरूरत है, लेट मी बी अ मीडियम, लेट मी बी अ पोर्टल through which they could get whatever they need. If they Yeah. need any healing, if they need just a pat on the back, just a friend to be around them, yes, we are all there. So we are Yes. all, that is how we can help each other, that is how we can pull each other out of any kind of hardships that one is going through. And this is how karma plays an actually beautiful bond in creating good connections. Absolutely, because when you raise your energy, you Yes, impact not just yourself, you impact people around you. Because you see, when yes, you raise your energy, your aura expands. And your yes, aura is expanding, you're raising your energy, you're feeling happy, you're feeling joyful. And anybody who comes inside that aura, your energy is going to be transferred to them as well. So yes. when you heal yourself, you heal the people around you.
Absolutely. because your energy is rising, you're moving up, your aura is expanding, your chakras are coming in balance, and this is like a whole glow that comes out of you, a Yes. happiness, a joyfulness, creativity, all these things come out. And anybody who even comes, sometimes you meet people जो अगर कुछ बोले भी ना, सिर्फ Hmm. उनकी प्रेजेंस इज इनफ, Yes. जस्ट बीइंग विद देम। आप किसी साधु संत जो अच्छे This. महात्मा लोग हैं, उनके पास सिर्फ जाके चुप करके आप बैठ जाओ, एंड यू Hmm. जस्ट सी व्हेन यू गो टू सम ऑफ दीज सिद्ध मंदिर्स, बड़े जो सिद्ध Hmm. टेम्पल्स होते हैं, Hmm. आप अगर वहां के, आपसे कुछ नहीं, कोई बात नहीं कर रहा, बट यू come back feeling so energized. Why Hmm. is that? Because the Hmm. vibration of that place is such, and we are all vibrating, we are all energy. Energy is in you, energy is in the things around you, Yeah. energy is everywhere. So if there Absolutely. is positive energy and you go and sit in that bubble of that positive energy, you will Hmm. 100% soak it. Yes. 100%. Yes. Similarly, if there is negative energy and you go sit and put yourself in that bubble of negative energy, you will 100% absorb it. The choice is always yours. The Absolutely. Kriyaman karma or the free will is always yours, and God does not interfere. No. God does not तो हम भी बोलते हैं ना, भगवान की वजह से हुआ, भगवान की वजह से सिर्फ अच्छा ही होता है, कुछ बुरा बिल्कुल. नहीं होता। वो बुरा हम एक्चुअली, अच्छा भी हम क्रिएट करते हैं, बुरा हाँ, भी हम बुरा भी क्रिएट आप करते एग्जैक्टली. हैं, कर्मा हैज भगवान नो सिर्फ देखते एनर्जी. हैं। कर्मा हैज नो गुड और बैड. इट्स जस्ट एनर्जी. इट्स जस्ट. या और देयर इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्पैक्टफुल एंड इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम सोचते हैं कि ना, हमें हमें नफरत ही बांधती है. हमें हमें अगर किसी पे गुस्सा आता है ना, वही हमारा एक कर्म है. नो, दैट इज पार्ट ऑफ इट. बट जब हमें किसी पे बहुत ज्यादा भी प्यार आता है ना, too much love is also a kind नॉट, of bondage. इट्स अ it's बॉन्डेज, या हंड्रेड it's a परसेंट टू bondage, मच and ऑफ it. एनीथिंग इज अ बॉन्डेज। So if you want to, जब हम ये बोलते हैं कि अच्छा इस कर्मा के चक्कर से हम बाहर कैसे निकले, the first and foremost thing is neutrality. अगर हमें बहुत सक्सेस मिल रहा है, न्यूट्रल. अगर हमें कुछ देखने भी आ रहा है which is up and down, neutral. If we love someone too much and we understand you love them, neutral. If you hate someone or you don't like someone, keep a distance. That's fine. That's good for you. That's good for them. But again, neutral. No, no gossiping. No saying anything about anyone. Because the most important thing is, आप जिनके बारे में सोचते हैं, आप उनकी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं. तो क्यों ना उनके बारे में सोचे जो परम आत्मा है, जिनकी एनर्जी या तो हमेशा ही 100% बैटरी पे चलती रहती है. एंड वेरी। वेन एवर वी थिंक अबाउट देम, हमको भी वो 100% बैटरी मिल जाती है. सो So it's very, I'm glad you brought this up, Gauri, because this whole concept of detachment यस. is something that needs to be understood a little यस. differently. And यस. I'll just take a few minutes to explain this concept of detachment. Detachment does not mean not wanting anything, यस. okay? यस. Because not एब्सोल्युटली. wanting is not possible for human beings. या. हम एक जो साधु संत महात्मा भी है ना, वो जो सब कुछ त्याग के पहाड़ों में जाके उनको भी साधना कर्म करते करना हैं, पड़ता है. हाँ. उनको भी मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, तो दैट डिजायर ऑल्सो इज. उनमें भी है। यस, दैट इज ठीक द है, डिजायर. या. हम, दैट इज अ डिजायर, द डिजायर, या. उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, डिजायर इज टू be one with God, but the एग्जैक्टली. desire is there. Now we, none of us are at that level, but what we need to understand this, and the meaning of detachment is just this: it is not the absence of desire, it is definitely not the absence of desire. Detachment means कि जब हमारे पास कुछ चीज है, चाहे वो हमारा रिश्ता है, चाहे हमारी कोई मटेरियल पोजेशन है, कुछ भी है, जब तक वो हमारे पास है, हम उसका भरपूर आनंद लें, खूब इंजॉय करें, अपने उनके साथ रहें, अपने पास रखें, हम जो भी करें. But for whatever reason, external situation, if that is taken away, you don't collapse with it. नो. नो. So being neutral at that time, or learning how to detach from something that you are extremely possessive about, is very important. So detachment does not mean the absence of desire. या. It means that if
that is taken away for whatever reason, you don't crumble down. आप अपनी स्थिति फिर भी मेंटेन कर सकते हैं, द ठीक है? Of course. वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि यू एंजॉय, बट व्हेन यू एंजॉय ऑल्सो रिमेंबर जो भी यहाँ हमारा है इन द मटेरियल वर्ल्ड इज एक्चुअली नॉट आर्स. द ओनली थिंग दैट इज आर्स इज आर सोल एंड आर कर्मा दैट वी टेक विद अस. सो जब हम ये याद रखते हैं कि अगर हमें कोई नया जैसे कार भी हमें मिलती है, दैट इज अगेन ऑल जो भी द ब्लेसिंग्स, और जो भी हम बोलते हैं कि ठीक है दैट इज, वो हमें मिलना था, हमें मिल गया. बट अगेन वो डिटैचमेंट उसी से होगा कि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज इफ वी हैव गॉटन इट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. जैसे हमें हमें ये शरीर मिला है फॉर 70 80 100 साल, जितने भी साल के लिए हमें मिला है. वी Yeah. कांट बी ऑल अबाउट आवर बॉडी. इफ वी आर बॉडी कॉन्शियस, इट्स एग्जैक्टली व्हाट पूजा जी सेइंग. इफ यू आर कॉन्शियस ऑफ द मटेरियल थिंग्स, आपको वो खिंचाव लगेगा ही. बट एज सुन एज यू आर अवेयर कि जैसे ये शरीर मेरे पास कुछ टाइम का है, ये गाड़ी भी मेरे पास कुछ टाइम की है, तो लेट मी फील and let me enjoy. If I feel like enjoying, let me enjoy, but let me not be like अरे इस गाड़ी के सिवा तो मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता. Don't do that. Yes. Yes, that's true. That's true. Very true. Yes. So thank you so much, guys. And we again are very sorry. We are not aware exactly kya hua in the technical error. But Yeah, we we'll don't know what again, happened. we'll see all of you again this Thursday at 7 p.m. on Instagram Live. And we're going to talk about soul contracts this time, soul contracts and Akashic records as well. So we will dwell into that a little bit. And if you have any questions about karma, if you have any questions for the next Thursday podcast that we are going to have on soul contracts, also please feel free to put in your comments, and we'll be more than happy to answer them and talk about it furthermore. Thank you so Yes, much, you Pooja can ji. send them DM. You can send us a DM. Yes, And yes, thank you, everyone who's posted these wonderful comments that you have yes. really enjoyed the discussion. Thank Thank you you. so much We for enjoyed your you being with appreciation. us. Yes, thank you so much. Have the most wonderful week Thank ahead. you. We will see you next Thursday with a discussion on soul contracts. Should you Yes, want us to talk about anything or deep yes, dive into a topic, please send us a message and we will try our best to incorporate that in one of the discussions that we'll have in the near future. Thank you yes. so Thank much. you. Have a beautiful week ahead. Bye Thank bye. you so much for joining Enlightenment Within. Thank you so much. Have a great Bye day. bye.